Hey guys, welcome back to my channel, the Humanities section, and today's topic is Fields in Basic Psychology from Class 11 Psychology, Chapter 1, What is Psychology? So let's get started. So there are various fields in the basic psychology. The psychology is of two types, which includes basic psychology and applied psychology. Let's go back. Yes. So what is the difference between applied and basic psychology? Basic psychology majorly focuses on theoretical parts. It is about the research. It is mostly about the research part. And what is applied psychology? It is about the practical, when you apply the theoretical knowledge in practice. So it is the applied psychology and the psychology based on the theory, on the research work is basic psychology. So there are various fields like cognitive psychology, biological psychology, developmental psychology, social psychology, cultural psychology, and environmental psychology, health psychology, abnormal psychology, industrial psychology, and educational psychology. So let's read the first field, which is cognitive psychology. So its characteristics are: investigates mental processes involved in acquisition, storage, manipulation, transformation of information received from the environment along with its use and communication. So in this type of psychology basically क्या होता है कि हम mental processes को investigate करते हैं, जो include करते हैं acquisition, storage, manipulation, transformation of information. ये सब processes से जो भी information जो है pass on होती है उन सबको investigate करता है from the environment along with its use and communication. हम उस information को कैसे use करते हैं और उसको कैसे communicate करते हैं to the other people भी ये जो है इसको इन्वेस्टिगेट करता है इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी. मूविंग फॉरवर्ड, इट स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग हाउ पीपल थिंक, perceive, remember and learn. As part of the larger field of cognitive science, this branch of psychology is related to other disciplines including neuroscience, philosophy and linguistics. इसके अंदर हम लोग मेंटल प्रोसेसेस रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, जिसके अंदर पीपल कैसे सोचते हैं, लोग कैसे सोचते हैं, परसीव करते हैं, याद रखते हैं, लर्न करते हैं. और अगर हम इसके थोड़ा सा बड़ा फील्ड सोचें इन कॉग्निटिव साइंस, तो ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, ब्रांच ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी और भी डिसिप्लिन से जुड़ती है, जैसे न्यूरोसाइंसेस, फिलॉसफी एंड लिंग्विस्टिक. Moving forward, it covers areas such as attention, memory, problem solving, language and decision making. कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर ये सब चीज़ें जो है कवर की जाती हैं जब इन्हें पढ़ा जाता है. जब कॉग्निटिव साइकोलॉजी को जो है पढ़ा जाता है, इस फील्ड में जाया जाता है, तो हमारा ध्यान अटेंशन पे होता है, मेमोरी पे होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे होता है, लैंग्वेज पे होता है, डिसीजन मेकिंग पे होता है. मूविंग फॉरवर्ड टू द एरिया ऑफ वर्क. इसका एरिया वर्क क्या है? वी कैन यूज दिस साइकोलॉजी इन रिसर्च, इन मेडिसिन एंड इन एजुकेशनल साइकोलॉजी. मूविंग फॉरवर्ड to biological psychology, its characteristics are: focuses on the relationship between behavior and physical system including brain, nervous system and endocrine system. Biopsychology is a field of psychology that analyzes how the brain and neurotransmitters influence our behaviors, thoughts and feelings. This field can be thought of as a combination of basic psychology and neurosciences. Now this is something very common. जैसे कि हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि बायोलॉजी से भी काफ़ी हद तक बोरो करता है साइकोलॉजी. दैट इज़ वाई इट इज़ इंक्लूडेड इन नेचुरल साइंस ऑल्सो. इट इज़ रेड एज ए नेचुरल साइंस ऑल्सो. तो इसमें वही है कि फोकस बायोलॉजिकल साइकोलॉजी का कहाँ होता है? बिहेवियर और हमारे फिजिकल सिस्टम पे. फिजिकल सिस्टम इन दिस हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑल द ऑर्गन्स इन द बॉडी और द सिस्टम्स प्रेजेंट इन द बॉडी, जैसे जिसमें ब्रेन, नर्वस सिस्टम और एंडोक्रीन सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है. बायोसाइकोलॉजी जो फील्ड है साइकोलॉजी की जो है वो ये पढ़ती है, वो ये स्टडी करती है कि कैसे ब्रेन और न्यूरोट्रांसमीटर हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, थॉट्स को इफेक्ट करते हैं, फीलिंग्स को इफेक्ट करते हैं. और इस फील्ड को हम एज अ कॉम्बिनेशन ले सकते हैं ऑफ बेसिक साइकोलॉजी एज वेल एज न्यूरोसाइंसेस. मूविंग फॉरवर्ड टू एरिया ऑफ वर्क. एरिया ऑफ वर्क इज बायोमेडिसिन, न्यूरोसाइकोलॉजी एंड लाइफस्टाइल डिसीजेज. लाइफस्टाइल डिसीजेज मतलब हमें कोई भी
रिलेटेड ड्राई सेल डिसीज़ अगर होता है तो वो हमारी बॉडी को चेक करते हैं कि हमारी बॉडी में कोई ऐसा हार्मोन ज़्यादा या कम रिलीज तो नहीं हो रहा जिसकी वजह से हमें कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है. मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव developmental psychology. Now its characteristics are studies physical, social, psychological changes that occur at different ages and stages of lifespan. It explains why we become the way we become. Now in developmental psychology, as the name suggests कि इसके अंदर हम लोग डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं. So it says कि हम इसमें पढ़ते हैं फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल चेंजेस जो डिफरेंट एज ग्रुप्स में जब हम एंटर करते हैं तब हमें एक्सपीरियंस करने को मिलता है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पैन में देखने को मिलता है. और वो हमें बताता है, जब हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी किसी पे अप्लाई करते हैं तो हमें वो बताता है कि हम ऐसे क्यों हैं जैसे हम बन गए हैं. कोई इंसान अगर बहुत एग्रेसिव है तो वो ऐसा एग्रेसिव क्यों है, एक इंसान बहुत चुप रहता है तो वो ऐसा चुप रहता क्यों है. So next point is, this branch of psychology looks at the development throughout the lifespan from childhood to adulthood. The scientific study of human development seeks to understand and explain how and why people change throughout people. This includes all aspects of human growth, including physical, emotional, intellectual, social, perceptual, and personality development. Topic studies in this field include everything from prenatal development to Alzheimer's disease. Now it says कि ये ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी जो है वो पूरे लाइफ स्पैन के अंदर जो हमारी डेवलपमेंट हुई है फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड जो है स्टडी करती है. और ये जो है साइंटिफिक स्टडी है ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जो बताती है कि लोग क्यों चेंज होते हैं थ्रू आउट द लाइफ. ऑल्सो ये ह्यूमन ग्रोथ के हर एक एस्पेक्ट को जो है कंसिडर करती है, फिर चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, इंटेलेक्चुअल हो, सोशल हो, परसेप्चुअल हो और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो. टॉपिक्स जो इस फील्ड में स्टडी किए जाते हैं वो फ्रॉम द प्रीनेटल डेवलपमेंट टू द अल्जाइमर्स डिसीज़. प्रीनेटल डेवलपमेंट सबसे जो है यंगेस्ट डेवलपमेंट या सबसे कह सकते सबसे ओल्डेस्ट डेवलपमेंट होती है एक ह्यूमन लाइफ में. और अल्जाइमर्स डिसीज़ जो होती है सबसे लास्ट आप कह सकते हो एक स्टेज होता है. अल्जाइमर्स डिसीज़ आई गेस इज समथिंग जब हम कुछ भूलना शुरू कर जाते हैं तो हमारे बचपन बिल्कुल पैदा होने से लेकर या उससे भी पहले से लेकर हमारा जो भी डेवलपमेंट हुई है टिल द एज दैट वी स्टार्ट टू फॉरगेट एवरीथिंग, वी आर वेरी वेरी ओल्ड, तब तक का सारा हमारा डेवलपमेंट जो है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में जो है स्टडी किया जाता है. दस द स्टोरी ऑफ आवर लाइफ फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव मेंशन्ड कि क्रेडल यानी हमारे बचपने से लेकर टू द ग्रेव जब तक हम लोग जब तक वी रीच आर फाइनल अबोर्ड तब तक हमारी पूरी स्टोरी ऑफ लाइफ जो है स्टडी की जाती है इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द एरिया ऑफ वर्क which is educational research, child psychology and geriatric psychology. So moving forward to social psychology, characteristics are social psychology explores how people are affected by their social environment, how people think about and are affected by the people. As the name suggests, social, so it is all about the human and its environment. कि कैसे वो लोगों से जो है इफ़ेक्ट होता है, वो लोगों के बातों से इफ़ेक्ट होता है, लोगों के बारे में क्या सोचता है, लोगों के सोशल इन्वायरमेंट से, आसपास के इन्वायरमेंट से वो कैसे जो है इफ़ेक्ट होता है. सोशल साइकोलॉजी उस बात को एक्सप्लोर करती है. मूविंग फॉरवर्ड, सोशल साइकोलॉजी लुक्स एट अ वाइड रेंज ऑफ सोशल टॉपिक्स इंक्लूडिंग ग्रुप बिहेवियर, सोशल परसेप्शन, लीडरशिप, नॉन वर्बल बिहेवियर, conformity, aggression and prejudice. It is more important to note that social psychology is not just about looking at social influences. Social perception and social interaction are also vital to understand social behavior. Now it says that social psychology में वाइड रेंज ऑफ सोशल टॉपिक्स आते हैं जिसके अंदर हम ग्रुप में बिहेवियर नोटिस करते हैं, जिसमें हम लोग सोशल परसेप्शन की सोसाइटी हमें क्या बताना चाह रही है और हम उसको कैसे परसीव कर रहे हैं उस बात को भी स्टडी किया जाता है. नेक्स्ट इज आर लीडरशिप क्वालिटीज़ कि हम एक ग्रुप को कैसे लीड कर सकते हैं टू अ सक्सेस टूवर्ड्स द फेलियर. नॉन वर्बल बिहेवियर क्या है, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है, इवन तो हम कुछ नहीं कहते तो हमारे फेस एक्सप्रेशन से, हमारी बॉडी लैंग्वेज से हमारा क्या पर्सनालिटी शो होती है.
मूविंग फॉरवर्ड, कॉन्फॉर्मिटी कि हम कितना ज़्यादा लोगों से अग्री करते हैं, अग्रेशन गुस्सा कितना हमारे अंदर, प्रेजुडिस, सेल्फ एस्टीम लाइक दिस हमारे अंदर जो है कितनी मात्रा में ये चीज़ें अवेलेबल है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट सोशल साइकोलॉजी सिर्फ सोशल इन्फ्लुएंसेस के बारे में नहीं है कि लोग हम पे कैसे इफेक्ट डालते हैं, ये और भी बहुत बड़ी वाइड रेंज है। Moving forward, social perception and social interaction are also vital to understand social behavior. So, उस सोसाइटी के बारे में क्या सोचते हैं और सोसाइटी से कितना इंटरैक्ट करते हैं, ये भी सोशल बिहेवियर को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। Moving forward to area of work is social change, research and NGOs. Next is cultural psychology. Characteristics are: it helps explain the role of culture in understanding behavior, thoughts, and emotions. It assumes that human behavior is not only a reflection of human biological potential, but also a product of the culture. Now it says कि कल्चरल साइकोलॉजी का काम है हमें ये बताना कि कल्चर का रोल क्या होता है बिहेवियर को समझने में, एक बिहेवियर को कैसे इफ़ेक्ट करता है कल्चर। अगर आप एक आदिवासी एरिया में जाएंगे तो उनका कल्चर ही ऐसा है कि हमारी एज के बच्चे भी, आप लोगों की एज के बच्चे भी वहाँ पर आपको काफ़ी अग्रेसिव, काफ़ी एक्टिव और काफ़ी जो है सेल्फ डिपेंडेंट मिलेगी, इंडिपेंडेंट मिलेगी। जबकि अगर आप सिटी की बात करें तो यहाँ के बच्चे काफ़ी हद तक डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स पे, फॉर देयर फूड, फॉर देयर शेल्टर, फॉर देयर क्लोथ्स, फॉर देयर एजुकेशन। और यहाँ के बच्चे जो है इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो अपने आप को सेल्फ सस्टेन कर ले। जबकि आदिवासी बच्चे जो हैं सिर्फ अग्रेसिव नहीं है बल्कि वो इतने ताकतवर हैं कि वो बिना किसी अडल्ट के काफ़ी टाइम तक अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो कल्चर पुट्स अ लॉट ऑफ चेंज इन द बिहेवियर। नाउ बिहेवियर, थॉट्स एंड इमोशंस, ऑल ऑफ देम. Now it is assumed that human behavior is not just a reflection of human biological potential. It's not just a play of human thoughts and ideas and also the biological effects, but also the product of culture. The culture puts a lot of effect on the human nature. Moving forward to the area of work, which is cross-cultural work, anthology, research, teaching and profiling. So thank you guys for watching my video. Please like, share, comment on video. Also do not forget to subscribe the channel and click the bell icon for the new updates. Thank you.